see us. Being occupied. Occupied. Being is the participle here, and being is word from be, the first form of the verb, and then ing. So we haven't had to depend on the sentence, what the kind of the sentence it is, that whether the sentence is a present past or, but we have to see that what the kind of the participle we are using. So the be is the first form of the verb, ing is the continuous form of the verb, so it is a present participle. Being occupied with the important matters, he had no leisure to see us. The children coming home from school look in at open door. Look in at the open door. The children coming home from school look in at the open door. जो children दिख रहे थे, ठीक है, coming from the school look at the open door. Coming home. So coming is participle. The children coming home. Children is noun, and it's defining noun, so it's an noun. Either it's a adjective or either it's a verb. So here coming is a verb. So it is verb noun participle. Michael, bereft of his son Luke, died of broken heart. Bereft of his son, मतलब जो जिसने सन ने जिस छोड़ गया था, Luke died of a broken heart. मर गया. Bereft of his son. Bereft is what? Second form. So it's a past participle. Sorry. Books read in childhood seem like old friends. जो books है childhood में हम पढ़ते हैं वो old friends की तरह होती है दोस्तों. Lessons learned easily are soon forgotten. Learned is a participle and lessons is noun. Learned is the verb defining the noun, means coming as an adjective. So the participle here is adjective participle. A word filthily spoken is like apples of gold in pictures of silver. कि जो word fitly spoken, जो word wisely spoke हम करते हैं, वो एक तरीके से apples of gold होती है in pictures of silver. उसकी pictures silver की रहती है, ठीक है. Seeing the sunshine, I threw open the window. Seeing the sunshine, I threw open the window. Seeing the sunshine, जो sunshine है, तो sunshine क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. Seeing the sunshine, I threw open the window. तो ये है पहली. Seeing word is the verb first form plus ing, so it's a present participle here. Which participle? Present participle. Okay, let's move to the next sentence. That is seizing him by the arm, his friend led him away. Seizing, seize plus ing, so present participle only. Encouraged by his wife, he persevered. Encouraged by his wife, he persevered. Persevered का मतलब क्या होता है सर? कि encourage मतलब होता है उत्साहवर्धन. Persevered मतलब determined, hard working and determined. क्या आपने दृढ़ निश्चय कर रखा है कि एग्जाम तो पास करके रहेंगे, चाहे 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, लेकिन एग्जाम पास करेंगे. दैट इज नोन एज परसिवर्ड. ठीक है. ओवरकम बाय रिमोर्स, ही डिटरमाइंड टू एटोन फॉर हिज क्राइम बाय लिबरलिटी टू द चर्च. ओवरकम बाय द रिसोर्स. रिमोर्स होता है पश्चाताप, रिग्रेट. जनरली प्रीपोजिशन लेता है रिमोर्स फॉर. ही डिटरमाइंड टू एटोन फॉर. देखो एटोन मतलब भी पश्चाताप होता है. बाय लिबरलिटी टू द चर्च, तो ओवरकम बाय रिमोर्स. रिमोर्स इज जनरली द फर्स्ट फॉर्म. एटोन फॉर हिज क्राइम बाय लिबरलिटी
to the church. So present participle use हुआ इसमें. Okay. अब देखो वो वापस कह रहा है कि इनको भी कंबाइन करो. The porter opened the gate. As we entered, the magician took pity on the mouse. He turned it into a cat. Taking pity on the mouse, the magician turned it into a cat. Having opened the gate, we entered. पहले तो ओपन किया होगा ना गेट. Having we started early, we arrived at noon. Having started early, we arrived at noon. ठीक है. We met a man, he was carrying a load of wood. We met a man, पहले having met a man who was carrying a load of wood. तो ऐसे दोनों सेंटेंस को पार्टिसिपल से ऐड कर सकते हैं. ठीक है, ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो. A crow stole a piece of cheese. She flew to her nest to enjoy the tasty meal. Having stolen a piece of cheese, a crow flew to her nest to enjoy the tasty meal. ऐसे हमें इनको जोड़ना है सर. ठीक है. The letter was badly written. I had great difficulty in making out its contents. As the letter was having badly written, had the letter badly written, I had great difficulty in making out its contents. समझ नहीं पाया कि लेटर में है क्या. Participles sometimes contains an implied meaning, which can be more fully expressed by changing the participle phrase into a clause of time, cause, concession और condition. Participle कई बार अलग मीनिंग रखते हैं या अपने आप उनकी मीनिंग रखते हैं, जो उनको फुल्ली एक्सप्रेस किया जा सकता है by changing the participle phrase into a clause of या तो टाइम की में या cause की में या concession की में या कंडीशन की में. ठीक है. जैसे having done his lesson, he went out to play cricket. जैसे ही उसने लेसन किया वो क्रिकेट खेलने गया. ओके. having done. तो अब यहाँ पे हमें after he had done lesson नहीं आएगा. Why? Because it's self understood कि पहले लेसन ही तो किए होंगे. Then only he went out to play cricket, walking along the street one day. While मतलब कह रहा है कि उस दिन वॉक कर रहा था. I saw a dead cobra. ठीक है. अब वॉकिंग ए डेड कोबरा, अगर यही सेंटेंस उल्टा कि मरा हुआ कोबरा चल रहा था, ऐसा तो आ नहीं सकता. हाँ. Being overpowered, because he was overpowered, he surrendered. Running at the, मतलब because he was overpowered, he surrendered. पावर खत्म हो गया. Running at the top speed, because he ran at the top speed, he go out of the breath. भले ही प्रेजेंट पार्टिसिपल है, भले ही परफेक्ट पार्टिसिपल है, थिंग इज ऑलरेडी अंडरस्टूड, दैट थिंग हैज बीन डन. भले ही पहला सेंटेंस ये कह रहा हो हैविंग डन हिज लेसन, लेकिन थिंग अंडरस्टूड इज दैट कि पहले लेसन खत्म हुए, देन ही वेंट टू प्ले द क्रिकेट. ओके. आफ्टर ही हैड डन हिज लेसन, देन ही वेंट टू प्ले द क्रिकेट. वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट वन डे मींस जब वो चल रहा था, तो वॉकिंग इज द पार्टिसिपल है, ऊपर वाले में हैविंग इज द पार्टिसिपल. बीइंग overpowered, यहाँ पे being is the participle here. Okay. Possessing all the advantage of the education and wealth, although he possessed all the advantage of education and wealth, he never made an end. Possessing all the advantage of education and wealth, although he possessed all the advantage of education and wealth, he never made a name. उसने कभी अपना नाम नहीं बनाया. तो सारी एडवांटेज थी सर उसको, लेकिन he possesses all the advantage of education and wealth, he never made a name. Never. Possessing all advantage of education and wealth, although he possessed all advantage of education and wealth, he never made a name. Means education था, wealth था, ज्ञान भी था, पैसा भी था, but he never made a name. But जितना फेमस होना चाहिए था उतना हुआ नहीं. Okay, that is the thing he want to say. Possessing all the advantage, मतलब possessing क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल. बट मीनिंग क्या है? ये तो उसमें पहले से ही थे, मतलब वो तो गेन कर चुका था. ही नेवर मेड एनी. ओके. भले ही वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ हो, बट द सेंटेंस इज सेइंग ही possessed दैट क्वालिटीज, मतलब पास्ट में ले चुका है वो क्वालिटीज, बट वो व्हाट हैपेंड, बट ही नेवर मेड एनी नेम. फॉलोइंग माय एडवाइस मींस ये conditional sentence, sir. If you follow my advice, you will gain your object.
7 were killed, including the guard, if the guard is included. Okay. अभी इनको रीराइट करना है सारे सेंटेंस को, पार्टिसिपल को चेंज करना है। जैसे क्विटिंग द फॉरेस्ट वी एडवांस इनटू द ओपन प्लेन, जैसे गोइंग अप द स्टेयर द बॉय फेल डाउन। अब यहाँ पे 2 सेंटेंस है, वापस उल्टा पूछा उसने कि वी वर गोइंग अप टू द स्टेयर्स द बॉय फेल डाउन, एज वी वर गोइंग अप द स्टेयर्स द बॉय फेल डाउन। ठीक है। हैविंग लॉस्ट माय पासपोर्ट आई अप्लाइड फॉर ए न्यू वन। तो यहाँ पे इसको 2 सेंटेंस कैसे होते कि जैसे ऊपर वाला सेंटेंस दे रखा है क्यूटिंग द फॉरेस्ट वी एडवांस इनटू द ओपन प्लेन, वी क्यूटेड द फॉरेस्ट एंड एडवांस इनटू दो हैविंग लॉस्ट माय पार्ट, तो इसको आई लॉस्ट माय पासपोर्ट आई अप्लाइड फॉर न्यू वन। तो आई लॉस्ट माय पासपोर्ट आई अप्लाइड फॉर द न्यू। आई वंस saw a man walking on a rope, I once saw a man, he was walking on the rope, he was walking on the rope, on a rope. Walking on the roof, he slipped and fell. He was walking on the roof. He was, yeah, had been walking on the roof. He slipped and fell. Having no guide with us, we lost our way. There was no guide with us. There was no guide with us. There was no guide with us. We lost our way. So we lost our way. The stable door being open, the horse was stolen. The stable door being open की जगह क्या आएगा? Was opened. Was opened. The horse was stolen. Would be the next sentence. Being paralytic, he was paralytic. He could not walk. He was paralytic. He could not walk. वो मूव नहीं कर सकता था. Hearing the noise. अब इसको कैसे? As I, पहले noise सुनी या पहले जगह? पहले noise सुनी. As I had heard the noise, I woke up. Yeah, as I heard the noise, I woke up. Caesar being murdered, the dictatorship came to end. पहले कौन मर्डर किया गया? सीजर. Caesar had murdered, the dictatorship came to end. बाद में dictatorship आई. तो जब ऐसे सेंटेंस आ जाए कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल साथ में आ जाए, देन क्या यूज होता है? वर्किंग ऑल द डे, आई वाज फटीग्ड. सारे दिन काम करते हुए मैं थक गया था. तो आई was fatigued. I was fatigued because I was working all the day. पहले क्या हुआ? वर्कर, एज आई हैड वर्क ऑल द डे. दूसरा तरीका ये है सेंटेंस को, एज आई हैड वर्कड ऑल द डे, आई वाज फटीग्ड. आई वाज फटीग्ड. We met an old sadhu walking to Banaras. We met an old sadhu walking to Banaras. ठीक है. We met an old sadhu while we were walking in Banaras. We were walking in Banaras. Having come of age, his son entered into partnership. His son come of his age, his son entered into partnership. Having failed in the first attempt, he made no further attempts. As he failed, he had failed in the first attempt. He had failed in the first attempt.
He had failed in the first attempt. He made no further attempts. ये हुए पार्टिसिपल पूरे। ठीक है, जो लास्ट टॉपिक है उस पे आते हैं, जिसका नाम है जीरंड। क्या नाम है? जीरंड। ठीक है, रीडिंग इज फेवरेट पास्ट टाइम। ये वर्ड रीडिंग इज फॉर्म फ्रॉम द वर्ब रीड। पहले पढ़ते हैं जीरंड पार्टिसिपल, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों। कहाँ फर्क है वो देखते हैं। इन्फिनेटिव में फर्क है साथ साथ, कि वहां पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या नहीं आएगा कब, या नहीं आता, टू या प्लेन इन्फिनेटिव, वहां पे वो चीज पढ़ रहे थे। बट पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, जहाँ पे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रही थी, या सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी प्लस आईएनजी हो जाता था, बी। ओके, कई बार पास्ट पार्टिसिपल में जहाँ पे ई डी टी एन ई एन ऐसे लग जाके पास्ट पार्टिसिपल, कई बार परफेक्ट पार्टिसिपल जहाँ पे हेज हेव हेड लग के और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी। तो दैट ऑल वी गेट फ्रॉम द पार्टिसिपल। लेकिन अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं जीरंड कि वर्ड रीडिंग इज फ्रॉम द वर्ब रीड। जैसे मैंने ये सेंटेंस शुरुआत किया कि रीडिंग इज इज फेवरेट पास्ट टाइम, कि वो उसका जो वो टाइम व्यतीत करता है वो रीडिंग से करता है। We also see that it here used as a subject of the verb and hence does the work of a noun. It is therefore the verb noun. It is called gerund. देखो वहां पे क्या था, partly a verb and partly an adjective, partly a verb and partly an adjective। तो वो क्या था, पार्टिसिपल। यहाँ पे पार्टली वर्ब और पार्टली नाउन। कई बार वर्ब की तरह बिहेव करेगा, कई बार नाउन की तरह बिहेव करेगा। अब देखो ऊपर रीडिंग आया है, ये वर्ब की तरह भी बिहेव कर रहा है। वी आल्सो सी दैट यहाँ पे वर्ड रीडिंग है, वो वर्ब की तरह भी बिहेव कर रहा है, लेकिन वो सब्जेक्ट की तरह भी आया है कि रीडिंग इज इज फेवरेट पास्ट टाइम। तो वहां पे इसको क्या बोलते हैं, जीरंड। की और एग्जाम्पल जीरंड के देखते हैं। प्लेइंग कार्ड्स इज नॉट अलाउड है, कि प्लेइंग कार्ड है वो यहाँ अलाउड नहीं है। आई लाइक रीडिंग पोएट्री, मुझे पोएट्री पढ़नी। देखो दूसरे सेंटेंस में वर्ब की तरह है, लेकिन पहले सेंटेंस में वर्ब तो है ही, नाउन की तरह भी आया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट बन के आया है, जो शुरुआत करता है पहला वर्ड होता है वो नाउन होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट की तरह भी बिहेव कर रहा है, पार्टली ए नाउन पार्टली ए वर्ब, दैट इज नोन एज जीरंड। दैट इज नोन एज जीरंड। आई लाइक रीडिंग पोएट्री, रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग पोएट्री, रीडिंग पोएट्री। ही इज फॉन्ड ऑफ होर्डिंग मनी, होर्ड, होर्ड प्लस आईएनजी, होर्डिंग मनी, होर्ड प्लस आईएनजी, होर्डिंग मनी। इज ही इज फॉन्ड ऑफ एडजेक्टिव है, फॉन्ड ऑफ, होर्डिंग वर्ब है, मनी, मनी नाउन है। तो नाउन से पहले आया है तो होर्डिंग नाउन वर्ब की तरह काम कर रहे। तो कई बार वर्ब की तरह काम करे, कई बार सब्जेक्ट की तरह काम करे, कई बार वर्ब और सब्जेक्ट दोनों की तरह काम करे, देन इट्स नोन एज जीरंड। यही जीरंड की डेफिनेशन है। कहाँ पे कैसे काम आता है देखिए, कि पहले सेंटेंस में जीरंड नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। रीडिंग इज इज फेवरेट पास्ट टाइम, इसमें कहा कैसे बिहेव कर रहा था, नाउन की तरह, लाइक ए नाउन, इसलिए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब बना है। बट वर्ब की तरह भी काम कर रहा है, कि इसीलिए इसने एक ऑब्जेक्ट भी लिया है। थस क्लियरली शोइंग दैट इट इज आल्सो द फोर्स ऑफ द वर्ब। तो पहला सेंटेंस जो आप देखोगे कि प्लेइंग कार्ड्स इज नॉट अलाउड हियर, इट आल्सो टेक दैट, ये प्लेइंग वर्ड यहाँ पे क्या है, इट इज एक्टिंग एज ए नाउन एज वेल एज वर्ब। सेकंड सेंटेंस, आई लाइक रीडिंग पोएट्री। अब इस पे चलते हैं कि ये कैसे बिहेव कर रहा है। ये नाउन की तरह भी कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, बट लाइक एन ऑब्जेक्ट, थस क्लियरली शोइंग दैट इट इज आल्सो फोर्स ऑफ द वर्ब। इसमें फोर्स ऑफ वर्ब भी है, और यहाँ पे दोनों चीजें हैं। थर्ड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस कौन सा, पहले वो पढ़ते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ होर्डिंग मनी, होर्डिंग कहाँ पे आया, लास्ट में। तो ये केवल नाउन की तरह, और एक प्रीपोजिशन है, ही इज फॉन्ड ऑफ होर्डिंग, लेकिन वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट भी ले रहा है। तो यहाँ पे नोटिस क्या हो रहा है कि इन्फिनिटिव और जीरेंड है वो बहुत ज्यादा एक जैसे ही है, दोनों नाउन्स की तरह यूज होते हैं, जबकि स्टिल रिटेनिंग द पावर दैट अ वर्ब हैज ऑफ द गवर्निंग अनदर नाउन और प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस। और ये इन्फिनिटिव और जीरेंड में ऐसा है कि दोनों एक जैसे हैं, कि वो दोनों नाउन की तरह यूज होते हैं, व्हाइल स्टिल रिटेनिंग द पावर दैट वर्ब हैज ऑफ गवर्निंग अनदर नाउन। तो वर्ब है वो कोई और नाउन को गवर्न कर सकती है और प्रोनाउन को
एक्यूजेटिव केस में। जैसे एक्यूजेटिव केस में थर्ड वाला सेंटेंस, ही इज फॉन्ड ऑफ होल्डिंग मनी, क्या दूसरा नाउन गवर्न कर रही है? मनी क्या है? दूसरा वाला नाउन। तो ये एक्यूजेटिव केस में दूसरे नाउन को गवर्न कर सकती है, तो वो जीरंड है। एक जीरंड इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ड विच एंड्स इन आईएनजी। तो जीरंड किसमें एंड होता है? आईएनजी। वो तो पार्टिसिपल भी होता है, बट पार्टिसिपल हमेशा आईएनजी में एंड हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ईडी पास्ट पार्टिसिपल में टी, एन, ई एन, डी ऐसे एंड हो सकता है, दैट इज नोन एज पार्टिसिपल। बट जीरंड का अभी तक क्या पढ़ा हमने? केवल आईएनजी में ही एंड होता है, और इसके अंदर वो एडजेक्टिव और वर्ब की भी कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, बट ये नाउन और वर्ब की कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। पार्टली ए नाउन एंड पार्टली ए वर्ब, तो जीरंड। पार्टली ए वर्ब एंड पार्टली एडजेक्टिव, देन इट्स पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल। टीच मी टू स्विम, कि as both the gerund and infinitive have the force of noun and verb, they are the same uses, उनके यूजेज भी सेम है। तो कई सेंटेंस में either of them may be used without any special difference in meaning, तो कई जगह वो सेम भी है। टीच मी टू स्विम, अब देखो यहाँ पे टू आ गया इसलिए स्विमिंग नहीं हुआ, लेकिन टू नहीं आता तो स्विमिंग होता। टीच मी स्विमिंग। टू सी इज टू बिलीव, देखना ही भरोसा करना होता है, विश्वास करना होता है। तो टू टू दोनों टाइम। टीच मी स्विमिंग, अब देखो टू हटाया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ पे जीरंड की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटिव की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, वर्ड सेम है स्विम, बट आईएनजी लगने के बाद में वो जीरंड बन गया। आईएनजी हटाया तो इन्फिनिटिव बन गया। टू सी इज टू बिलीव, टू टू दोनों क्या हो गए? जी, इन्फिनिटिव। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सीइंग इज बिलीविंग, जीरंड क्या हो गया? जीरंड। बस यही फर्क है इन्फिनिटिव और जीरंड में, कि कई बार दोनों सेम भी हो सकते हैं जब आईएनजी आईएनजी लगते हैं, बट जहां पे कब सेम होंगे? जब वो प्लेन इन्फिनिटिव होगा, जब वो विदाउट टू आएगा। बट अगर टू के साथ आ रहा तो वहां पे क्लियरली है इन्फिनिटिव ही होगा, वो जीरंड नहीं होगा, क्योंकि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, जबकि जीरंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमेशा मिलेगा। टू गिव इज बेटर देन टू रिसीव, जीरंड नहीं, पार्टिसिपल है। जीरंड कब होता? जब टू नहीं आता। टू नहीं आता। गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग, इट इज जीरंड, प्योरली जीरंड। कैसे? गिविंग इज गिव प्लस आईएनजी, रिसीविंग इज रिसीव प्लस आईएनजी, दैट इज जीरंड। कि कुछ फॉलोइंग एग्जांपल है जो कंपाउंड जीरंड फॉर्म्स के। I heard of his having gained a prize, मैंने उसके बारे में सुना कि वो उसको प्राइज मिला। ठीक है। We were fatigued on the account of having walked so far, they were charged with having sheltered an artist, he is desirous of being praised, ये सारे क्या है? कंपाउंड जीरंड फॉर्म। ठीक है, कंपाउंड जीरंड फॉर्म। अब कंपाउंड जीरंड फॉर्म होती क्या है? कि it will be noticed that compound gerund forms are formed by placing a past participle after gerunds of have and be। देखो, I heard of having, have plus ing, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? जीरंड की। पार्टिसिपल की भी है, बिल्कुल है। I heard of, लेकिन इस हैविंग के बाद में जस्ट क्या आया? ईडी, तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? पार्टिसिपल की। तो इसलिए इसको क्या बोला? कंपाउंड पार्टिस जीरंड फॉर्म। वी वर फटिग्ड, अब देखो ये फटिग्ड क्या है? ईडी लगा है तो पार्टिसिपल भी है। ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग वॉक्ड सो फार, हैव प्लस आईएनजी, ये जीरंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पार्टिसिपल की। ये पास्ट पार्टिसिपल बता रहा है, ये वापस प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरफ जा रहा है, मतलब ये जीरंड है, ये पार्टिसिपल है। दे वर चार्ज विथ हैविंग शेल्टर्ड, हैविंग क्या है? जीरंड, बट उसके जस्ट बाद शेल्टर्ड आया, ईडी, पास्ट पार्टिसिपल। एनार्किस्ट, एनार्किस्ट होता है अराजकता फैलाना, एनार्किस्ट। अराजकता, सिस्टम को फेल कर देने वाला, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने वाला, अराजकता फैलाने वाला। ठीक है। ही इज डिजायरस ऑफ बीइंग प्रेज, डिजायर बीइंग वर्ड जीरंड, बीइंग जीरंड, बट नेक्स्ट वर्ड प्रेज, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो
यही होते हैं कंपाउंड पार्टिसिपल, जिसके अंदर एक जीरंड हो, उसके बाद में जो फॉलो करने वाला वर्ड हो वो कौन सा हो, पास्ट पार्टिसिपल। जीरंड एक ट्रांजिटिव वर्ब का फॉलोइंग फॉर्म होती है, लविंग। ठीक है, जीरंड देखो ये प्रेजेंट के अंदर लव प्लस आईएनजी, परफेक्ट में हैविंग लव्ड। अब देखो यहाँ पे हैविंग के अभी भी आईएनजी फॉर्म है, लेकिन उसके बाद में थर्ड फॉर्म, तो उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट में पैसिव वॉइस में बीइंग लव्ड, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, बट आफ्टर इट पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन पैसिव वॉइस में हैविंग बीन लव्ड भी यूज होता है। ठीक है? जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट, जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी में एंड होते हैं दोनों ही। दे मस्ट बी केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड, उनके बीच में हमें कैसे पता चलेगा कि ये जीरेंड है और ये पार्टिसिपल है। देखो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव और वर्ब की पहले ही डेफिनेशन में छुपा हुआ है कि जीरेंड है, उसके अंदर नाउन और वर्ब का कि जीरंड है, उसके अंदर फोर्स होता है नाउन और वर्ब का। किसका, नाउन और वर्ब का। लेकिन जीरंड के अंदर फोर्स होता है नाउन और वर्ब का, लेकिन इसको पार्टिसिपल में वही चीज क्या होती है, एडजेक्टिव ऑफ वर्ब। आप दो चीजें सिंपली सी लिख लो, कंपेरेटिव, दो चीजें सिंपल सी लिख लो कि एक है पार्टिसिपल, जो पहले पढ़ा था दोस्तों वो था पार्टिसिपल। सेकंड थिंग वाज जीरंड। ठीक है दोस्तों, पार्टिसिपल के अंदर पार्टिसिपल बिहेव करता है एडजेक्टिव की तरह और वर्ब की तरह। दोनों ही पढ़ रखी है तुमने, तो दोनों में फर्क पता कर सकते हो। जबकि जीरंड बिहेव करता है नाउन और वर्ब की तरह, नाउन और वर्ब की तरह। जैसे एग्जाम्पल जीरंड का, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट क्या है, नाउन, प्लेइंग क्या है, वर्ब। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। देखो अब कई लोग सोच रहे होंगे एडजेक्टिव हो सकता है कि नाउन के पहले आया, तो फिर ये क्या है, फॉन्ड ऑफ, ये खुद एक एडजेक्टिव है, तो डबल एडजेक्टिव विदाउट कॉमा जा सकते हैं क्या, नहीं। इज फ्लॉन्ड ऑफ प्लेइंग, तो ये वर्ब है। जैसे पर यहाँ पे देखो, प्लेइंग क्रिकेट ही गेन्ड हेल्थ, यहाँ पे और कोई एडजेक्टिव है क्या, नहीं है। यहाँ पे कौन है, प्लेइंग वर्ड ही एडजेक्टिव है, तो वर्ब की तरह तो काम कर रहा ही है, लेकिन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ये प्लेइंग क्रिकेट एक वर्ब और नाउन के साथ में अटैच है, तो वर्ब नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। द ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, तो जब नाउन के साथ अटैच्ड आए और वर्ब की तरह बिहेव करे देन इट्स जीरो। लेकिन जब नाउन के साथ अटैच्ड आए और एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव करे देन इट्स नोन एज पार्टिसिपल। The old man was tired of walking. So walking is the participle है। Tired of क्या है, प्रीपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट बन के आई है। मतलब क्या, कैसे वॉकिंग कैसे बिहेव कर रहा है, नाउन की तरह, प्योर नाउन की तरह। तो नाउन की तरह बिहेव करे देन इट्स जीरंड, नॉट ए पार्टिसिपल, बिकॉज पार्टिसिपल एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में बात करता है, ओनली एडजेक्टिव और इसके बारे में बात करता है, नॉट नॉट ऑफ द। ठीक है, तो देखेंगे वी वर प्रिवेंटेड फ्रॉम सीइंग द, देखो इस बार पास्ट जीरंड है न कि प्रेजेंट जीरंड है। वी वर प्रिवेंटेड फ्रॉम द सीइंग, तो ये वर्ब की तरह आया प्योरली, वी वर प्रिवेंटेड फ्रॉम सीइंग। और अगर ये अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात आए, प्रेजेंट जीरंड की बात आए, फ्रॉम सीइंग द प्रिजनर, तो प्रिजनर को देखने नहीं दिया गया था। सी वैसे जनरली आईएनजी लेता नहीं है, बट जीरंड में ले लेता है, सीइंग द प्रिजनर। सीइंग इज बिलीविंग, अभी किया था आगे सेंटेंस, दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो दोनों ही टू के बिना है, देन इट्स नोन ए जीरंड, नॉट ए पार्टिसिपल, नॉट ए पार्टिसिपल। ओके, दैट इज द मेन डिफरेंस। प्लेइंग क्रिकेट ही गेन्ड हेल्थ, कि क्रिकेट खेलते टाइम उसने हेल्थ गेन की, क्रिकेट खेल के उसने क्या की, हेल्थ गेन की। प्लेइंग क्रिकेट ही गेन्ड हेल्थ।
क्रिकेट क्या है? नाउन। नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। ठीक है, तो प्लेइंग क्या है? वर्ब तो है ही, एडजेक्टिव का काम भी कर रही है। वॉकिंग अलोंग द रोड, रोड क्या है? नाउन। और वॉकिंग क्या है? एजेंट, वर्ब एजेंट एडजेक्टिव, वर्ब एंड सीइंग, ही बिलीव्ड। अब बिलीव नहीं है इसका, बिलीव। ठीक है, सीइंग, सीइंग इज ए वर्ब बट बी वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, आइदर एडजेक्टिव और ए वर्ब। तो सीइंग सिंपली वर्ब है यहाँ पे। सीइंग ही बिलीव्ड, अगर किसके आगे है? ये प्रोनाउन के आगे, तो क्या हो सकती है? प्रोनाउन को डिफाइन करिए तो एक एडजेक्टिव हो सकती है। ठीक है, तो ये फर्क है दोनों। The indiscriminate reading of novels is injurious. Indiscriminate reading of novels is injurious. ठीक है, ये लिखा हुआ सेंटेंस। तो इनडिस्क्रिमिनेट रीडिंग क्या हो गई दोस्तों? इनडिस्क्रिमिनेट रीडिंग हो गई नोवेल हो गया। जो रीडिंग हो गई वो क्या हो गया कि वो पार्टिसिपल हो गया, पार्टिसिपल। द रीडिंग इज यूज्ड लाइक एन ऑर्डिनरी नाउन, द रीडिंग इज यूज्ड लाइक एन ऑर्डिनरी नाउन, रीडिंग इज यूज्ड लाइक ऑर्डिनरी नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे रीडिंग क्या है? ऑर्डिनरी नाउन, ऑर्डिनरी नाउन। Notice that the is used before and of after it. So the reading is used like an ordinary noun. क्यों? इनडिस्क्रिमिनेट रीडिंग क्या है? नाउन की तरह आया है। क्यों? आर्टिकल की, आर्टिकल किसके लिए आता है? एक नाउन के लिए आर्टिकल आता है। आर्टिकल कम्स फॉर ए नाउन, आर्टिकल कम्स फॉर ए नाउन। जैसे ही इज ए बॉय, बॉय क्या है? नाउन। और नाउन के लिए कौन आया? आर्टिकल ए। Notice that the is used before and of after it. The is used before and of after it. ठीक। Further example of gerund used like ordinary nouns. The making of the plan is in hand. Gerund ऐसे भी यूज होते हैं। ठीक है, द मेकिंग ऑफ द प्लान, तो मेकिंग gerund है ऑर्डिनरी नाउन्स के लिए। द टाइम ऑफ सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स इज कम। सिंग से, सिंग वर्ब थी बट नाउन की तरह यूज करा रहे, सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स। ए डैम कंसेंटेड टू द ईटिंग ऑफ द फ्रूट, ईटिंग इज द gerund है। The middle station of the life seems to the most advantageously situated for the gaining of the wisdom. इसके लिए gaining of the wisdom। कई बार कंपाउंड नाउन भी यूज होते हैं। वॉकिंग स्टिक, फ्राइंग पैन, हंटिंग विप। ये क्या है? देखो इसमें पहले वॉक क्या है? वॉक है, वॉक से बना है वॉकिंग। ठीक है, और स्टिक नाउन प्लस वॉक वाज आल्सो ए नाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जैसे आईएनजी जोड़ दिया। फ्राई वर्ब आईएनजी, फ्राइंग पैन। लेकिन क्या है ये? कंपाउंड नाउन जिसमें दो वर्ड, मिक्स अप मेड अप मोर देन वन वर्ड इज कंपाउंड नाउन। हंटिंग विद, फेंसिंग स्टिक, राइटिंग टेबल, ये साथ में ही आते हैं। कि ही वाज वॉकिंग, हिज वॉकिंग स्टिक हैज ऑलरेडी broken, frying pan heat up quickly, hunting whip has been issued, fencing stick, fencing stick is lying on the table, writing table is there with the board, walking, frying, hunting, fencing, writing, all are zeros, sir. Why? Noun से बनाए गए हैं। फ्राई, वॉक क्या है? वॉक की कोई तीन फॉर्म होती है क्या? वॉक, वॉकर, वॉकेस्ट नहीं होती। इसलिए किससे बनाए गए? नाउन से। कई बार वर्ब से बनाए गए, देन आल्सो दिस इज जीरंड। जैसे फ्राई, फ्राइड, फ्राइड, तो ये वर्ब है। हंट फिर नाउन है, फेंस नाउन है, राइट वर्ब है। सो नाउन, partly a noun and partly a verb are known as gerund.
दे मीन ए स्टिक फॉर वॉकिंग, उसको क्या बोल दिया, उल्टा करके वॉकिंग स्टिक। अब कभी स्टिक वॉकिंग आ गया देन इट्स रॉन्ग, पेन फ्लाइंग आ गया रॉन्ग, विफ हंटिंग आ गया रॉन्ग, स्टिक फेंसिंग आ गया रॉन्ग, टेबल राइटिंग आ गया रॉन्ग। कभी भी उल्टे दिखे ये वर्ड देन मीन्स द वर्ड इटसेल्फ आर रॉन्ग। ठीक है, वर्ड्स ही गलत है। कंपेयर द फॉलोइंग टू सेंटेंस, दो सेंटेंस आपको कंपेयर करने हैं। आई होप यू विल एक्सक्यूज माई लिविंग इट, आई होप यू विल एक्सक्यूज मी लिविंग इट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है पॉजिटिव केस, पॉजिटिव जो तुम्हें पहले करवा चुका हूं, मतलब खुद का। और यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस सेकंड सेंट ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि मी किसका बना, आई से वर्ड, ये है सब्जेक्ट केस जो कि यहाँ नहीं था। ठीक है, पहला सब्जेक्ट आया सब्जेक्टिव केस, फिर आएगा पॉजिटिव केस, और फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्टिव केस। पहला सेंटेंस ये कह रहा है कि वर्ड प्रीसीडिंग द जीरंड, जीरंड से पहले जो वर्ड है माई, वो किसमें है, पॉजिटिव केस में। वाइल इन द सेकंड सेंटेंस, ये जो पहले वर्ड है इसके वो है ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन दोनों सेंटेंस करेक्ट है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। वी कैन यूज आइदर द पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द नाउन्स एंड प्रोनाउंस बिफोर जीरंड। अगर वो जीरंड है तो हम दोनों यूज कर सकते हैं, आइदर पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस बिफोर जीरंड। लेकिन शर्त क्या है कि उनके पीछे जीरंड होने चाहिए। कौन होने चाहिए, जीरंड होने चाहिए। मतलब ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होने चाहिए जो पार्टली एक्टिंग करे, या तो वर्ब या नाउन की तरह। लिविंग अर्ली, माई लिविंग अर्ली क्या है, लीव, लीव इज लीव, लेफ्ट, लेफ्ट पार्ट एक्टिंग एज ए वर्ब, सो इट्स जीरंड। सेकंड सेंटेंस, आई होप यू विल एक्सक्यूज मी लिविंग अर्ली, मेरी एक्सक्यूज कर दोगे मुझे जल्दी छोड़ने का। ठीक है, इसलिए वहां पे क्या आएगा कि वहां पे भी आएगा वो भी क्या है, सही जीरण है, दोनों ही सही जीरण, माई और मी। अदरवाइज पॉजिटिव आता, अगर पॉजिटिव की जगह ऑब्जेक्टिव आता, ऑब्जेक्टिव की जगह, बट अगर जीरण है पीछे वो होता राइट। यहाँ पे डिपेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है खुद पे, मेरा। ओके, पॉजिटिव इज मोर फॉर्मल and it is less usual in everyday speech. Here are further example. पजेटिव को थोड़ा कम यूज करते हैं जबकि ऑक्यूजेटिव केस को हम ज्यादा यूज करते हैं। We rejoiced at his being promoted. हम ये पजेटिव को कम यूज करते हैं, ठीक है। तो हम ज्यादा किसको यूज करते हैं, he rejoiced at him being promoted. Why? Because an object is followed by an object. इसलिए him को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। हिम कहाँ से आया, ही सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, हिज पॉजिटिव केस, और लास्ट में हिम एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस। डू यू माइंड माई सिटिंग हेयर या मी सिटिंग हेयर, तो मी सिटिंग हेयर वुड बी राइट आंसर, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑल डिपेंड्स ऑन करीम, करीम्स, करीम पासिंग द एग्जाम, करीम्स पासिंग, दोनों करेक्ट है बट करीम पासिंग द एग्जाम वुड बी मोर राइट। आई डिसलाइक द मैनेजर्स आस्किंग मी पर्सनल क्वेश्चंस, मुझे मैं डिसलाइक करता हूँ मैनेजर को जो वो मुझे पूछ रहा है क्वेश्चंस, पर्सनल क्वेश्चंस, जो मुझे पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहा है। द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू द इंजन ड्राइवर डिसरिगार्डिंग द सिग्नल्स, जो सिग्नल से रिगार्डिंग जो एक्सीडेंट हुआ है वो एक्सीडेंट वाज ड्यू टू द इंजन ड्राइवर डिसरिगार्डिंग द सिग्नल्स। ओके, जो एक्सीडेंट क्यों हुआ है, इंजन ड्राइवर्स डिसरिगार्डिंग द सिग्नल्स, तो इसलिए हुआ है डिसरिगार्डिंग द आईएनजी फॉर्म।
A gerund being verb noun may be used. Subject of a verb, जैसे seeing gerund को कई बार verb noun की तरह ही behave करवाया जाता है, जैसे subject of a verb। देखो दोनों वर्ब है, वैसे देखा जाए तो सी इज आल्सो वर्ब, बिलीव इज आल्सो वर्ब, दोनों के आगे आईएनजी, दोनों के आईएनजी। तो आप सेलेक्ट करो कौन सी वर्ब है। तो वर्ब तो नाउन के बाद आती है, पहले नाउन चाहिए, तो यहाँ पे दोनों वर्ब है, बट दिस वर्ब इज एक्टिंग एज ए नाउन, सो इट इज नोन एज नाउन वर्ब। ठीक है, वाइल द अदर वन इज प्योर वर्ब। सो दिस, अगर जो नाउन वर्ब की तरह एक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम, जीरंड। तो जीरंड को वर्ब नाउन। Object, hunting deer is not allowed in the country. Allowed is verb. Hunting is also verb, but this hunting is acting as a noun. So this is known as gerund. ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, स्टॉप प्लेइंग। अब यहाँ पे प्लेइंग इस बार क्या है, जीरंड। वाई? बिकॉज ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये नाउन की तरह भी काम कर रहा है, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, अदरवाइज कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। स्टॉप तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए, सेंटेंस को प्रेडिकेट भी तो चाहिए कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो प्रेडिकेट कौन सा हुआ, प्रेडिकेट हुआ स्टॉप, स्टॉप हुआ सब्जेक्ट और प्लेइंग हुआ प्रेडिकेट। ठीक है, चिल्ड्रन लव मेकिंग मड कासल्स, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज आया प्लस वर्ब की तरह यूज है। ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट कौन हो गया, कासल्स। कासल्स होता है महल, कासल्स क्या होते हैं, महल। महल को कहते हैं, एक तो महल को बोलते हैं फोर्ट, एक बोलते हैं कासल्स। आई लाइक रीडिंग पोएट्री, आई राइट रीडिंग पोएट्री, रीडिंग पोएट्री, मुझे पोएट्री बहुत अच्छी लगती है सर। तो रीडिंग हेयर कम्स एज द, पोएट्री क्या है, ऑब्जेक्ट, उसकी वर्ब बन के आई, ऑब्जेक्ट को लिया किसने, ट्रांजिटिव वर्ब के ने, तो रीडिंग, तो रीडिंग इज द जीरंड हेयर। ही कंप्लीट कॉन्टेम्पलेटेड मैरिंग हिज कजन, उसने पहले से ही सोच रखा था, मैरिंग हिज कजन, सोच रखा था, कंटेम्पलेट, मैरिंग हिज कजन, तो मैरिंग इज जीरंड हेयर माय फ्रेंड्स, मैरिंग इज जीरंड हेयर। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, कई बार सीरंड आता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। देखो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, हालांकि अभी तक मैंने आपको शायद प्रीपोजिशन कराई नहीं है, बट फिर भी इतना आप सब पढ़ के आए हो 10वीं 12वीं तक, आई एम टायर्ड। और अगर नहीं पढ़ा तो फिर मतलब आपने कुछ नहीं किया है लाइफ में। कि यहाँ पे प्रीपोजिशन को पहचानना आपको कि प्रीपोजिशन कौन सी है। सो एवरीबडी विल से आंसर ऑफ। ऑफ के बाद क्या है, वेटिंग। क्या वेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बिल्कुल है। उसके आगे आईएनजी है, वेटिंग वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, एक नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, देन इट्स नोन एज जीरम। एडजेक्टिव की तरह तो नहीं आया, एडजेक्टिव प्रीपोजिशन के पीछे तो नहीं आता, इसलिए ये क्लियरली हम बता सकते हैं कि ये जीरंड है। क्या है ये, जीरंड है। और इन्फिनेटिव में तो ऐसा आता नहीं, टू प्लस आईएनजी आता है। ओके, सो नाउ ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। अगले सेंटेंस में आप पहचानो कि प्रीपोजिशन कौन सी है, एडजेक्टिव कौन सा है, स्विमिंग क्या है। ठीक है, आई टू ड्रिंक वाटर फॉर 10 सेकेंड्स, जब तक पहचानो। ठीक है, करते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। देखो ही क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। फॉन्ड क्या है, एडजेक्टिव।
इज हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रीपोजिशन। स्विमिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्विम से बना है, उसके आगे आईएनजी लगा है, ठीक है, तो स्विमिंग बन गया। ओके, सो स्विमिंग इज द gerund here, my friends. He was punished for telling a lie. ठीक है, तो उसको पनिश किया गया लाई, झूठ बोलने के लिए। तो यहाँ पे फॉर क्या है? प्रीपोजिशन। पनिश्ड फॉर फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, उसके बाद में जो भी वर्ड आया दैट वुड बी ए gerund। यही तो कह रहा है ये कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आता है कई बार, बिल्कुल आया। वी वर प्रिवेंटेड फ्रॉम सीइंग द प्रिजनर, हमको प्रिवेंट किया गया था फ्रॉम सीइंग द प्रिजनर, प्रिवेंटेड फ्रॉम सीइंग द प्रिजनर, प्रिवेंटेड फ्रॉम सीइंग द प्रिजनर। आई हैव एन एवर्जन टू फिशिंग, मुझे एवर्जन मतलब डिसलाइक है, आई डिसलाइक टू फिशिंग। एवर्जन टू इज ए फिक्स्ड प्रीपोजिशन, टू मतलब हेट करता है वो उसको। फिशिंग इज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या फिश नाउन है? बिल्कुल, प्लस आईएनजी वर्ब की तरह एक्ट करा रहा है इसको, नाउन वर्ब, इसलिए क्या है? gerund। नाउन एडजेक्टिव होता तो इट वुड बी एन इन्फिनेटिव। कई बार कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब भी आ सकता है, मतलब वर्ब को ही डिफाइन करने के लिए। सीइंग इज ए gerund बट केम फॉर बिलीविंग, केम फॉर बिलीविंग। किस लिए आया है? बिलीविंग को बताने के लिए कि ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब है। सीइंग इज बिलीविंग। व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट इज स्मोकिंग, मुझे जो सबसे गंदी चीज लगती है, हेट, घृणा। क्या है? घृणा। किस चीज से है? स्मोकिंग से। व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग। प्लेइंग कार्ड्स बीइंग हिज एवर्जन, वी डिड नॉट प्ले ब्रिज। एब्सोल्युटली इसलिए यूज होता है कि पूरे सेंटेंस को ही जीरण जब पूरा डिफाइन करने लगे, देन इट्स नोन एज एब्सोल्युटली यूज। एब्सोल्यूट अभी पार्टिसिपल में भी पढ़ा था, इन्फिनेटिव में भी पढ़ा था, और एब्सोल्यूट जीरण भी होता है जब जीरण आगे आगे आए, वर्ब की तरह काम करे या नाउन की तरह काम करे। देखो प्लेइंग कार्ड, ये कहाँ आया? आगे आगे। कार्ड क्या है? नाउन। नाउन से पहले क्या आया? प्लेइंग कार्ड। सो इट्स वर्किंग एज ए नाउन ओनली। प्लेइंग कार्ड पूरा एक नाउन है, प्लेइंग कार्ड। बीइंग हिज एवर्जन, तो एवर्जन मतलब वो डिसलाइक करता है, जिसको हेट करता है, जिससे दूर रहता है। वी डिड नॉट प्ले ब्रिज, इसीलिए उसके सामने ब्रिज नहीं खेलते, पत्ती नहीं खेलते, बिकॉज उसको बहुत बुरा लगता है, इसलिए नहीं खेलते। सो ये क्या है? जीरंड है दोस्तों, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज है जिसमें आपको पॉइंट आउट करना है कि कौन सा पार्टिसिपल, कौन सा जीरंड है, और पार्टिसिपल के अंदर उसको नाम दो कि नाउन या प्रोनाउन को कौन से क्वालिफाई कर रहा है। जीरंड के अंदर बताओ कि वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है या फिर प्रीपोजिशन के बाद में यूज हुआ है। मतलब जो अभी रिसेंटली अपन ने सीखा है उसी का टेस्ट है, इसीलिए ये पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज थिंग्स आर गोइंग ऑन, सिलेबस इज बीइंग कवर्ड, सिलेबस के जस्ट बाद में एक्सरसाइज रखी जाती है। दैट मीन्स यू आर फिल्टरिंग योरसेल्फ। केवल नॉलेज लेना इज नॉट द सफिशिएंट थिंग, केवल एक्सरसाइज क्वेश्चंस लगाना इज नॉट द सफिशिएंट थिंग। both are corollary to each other, both are contemporary to each other, both are the complementary to each other, both are supplementary to the each other। मीन्स अगर एक चीज की आपने और उसी को फॉलो करवाओ दूसरी से, then it's beneficial for your examination, that you will get something। जैसे he was found fighting desperately for his life, he was found fighting, found is what? verb, और ये फाइटिंग क्या है? एडवर्ब की तरह आया है, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्ब वर्ब की ऐसी चर्चा, मतलब वर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है। सो इट्स एन पार्टिसिपल। और कैसा? ही वाज फाउंड फाइटिंग, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये क्या है? इन्फिनिटिव, ये पार्टिसिपल है, ओके। ही हैज रूइंड हिज साइट बाय रीडिंग स्मॉल प्रिंट, उसकी आंखें खत्म हो गई बाय रीडिंग स्मॉल प्रिंट। देखो बाई क्या है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसलिए वो नाउन की तरह काम करे जो वर्ब, तो वो है जीरंड सर, वो पार्टिसिपल नहीं है।
Hearing the noise, he ran to the window. ये एक पार्टिसिपल भी है, ये एक जीरंड भी है, दोनों है. Hearing the noise, noise को सुनने के ऊपर he ran to the window. मैं जनरली इसको पार्टिसिपल में रख सकते हैं. और कौन सा पार्टिसिपल है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल. कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल इट इज. We saw a clown standing on his head. Clown standing on his head. तो क्लाउन क्या है? नाउन. नाउन को ये बता रही है और इसके बाद में क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, तो पार्टिसिपल है ये. ठीक है. आस्किंग एन क्वेश्चंस इज इजियर देन आंसरिंग देम. क्वेश्चन पूछना बहुत आसान है, बट आंसर करना उनको बहुत मुश्किल है. तो यहाँ पे आस्किंग क्वेश्चंस इज एक कंपाउंड नाउन है. ठीक है, इसलिए ये क्या है? जीरंड. क्या है? जीरंड. अब सेकंड है वेविंग. Waving their heads and handkerchiefs, the people cheered the king. Waving their heads. Waving their heads. Waving is the participle here. देखो their heads क्या है? प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है. जब प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये क्या है? पार्टिसिपल. क्या है ये? पार्टिसिपल है दोस्तों. ये एक्सरसाइज है आपकी. वॉकिंग ऑन द ग्रास, तो प्रीपोजिशन के बाद में आया, तो इट्स वॉकिंग ऑन द ग्रास इज फॉरबिडन. वॉक एक एडजेक्टिव है, वॉक एक नाउन है, नाउन से बनाया गया वॉकिंग. ऑन द ग्रास इज फॉरबिडन. इट कैन बी केप्ट ऑन द पार्टिसिपल एज वेल एज जीरंड. जंपिंग ओवर द फेंस, द थीफ एस्केप्ड. जंपिंग ओवर द फेंस, द थीफ एस्केप्ड. थीफ बच गया. कैसे? जंपिंग ओवर द फेंस. तो ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. द माइजर स्पेंड हिज टाइम इन होर्डिंग मनी. अभी आया था होर्डिंग मनी. ठीक है, तो ये जीरंड है. जीरंड इन क्यों? क्योंकि ये प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला वर्ड होर्डिंग. मच डिपेंड्स ऑन रामाज रिटर्निंग बिफोर नून. रिटर्निंग ये प्रीपोजिशन के पहले है. रामाज रिटर्निंग, तो ये पार्टिसिपल. Damaging wealth often ruins health. ये वेल्थ नाउन के पहले एडजेक्टिव आया है. ठीक है, तो ये पार्टिसिपल है. इट वाज सरप्राइज्ड, ये सरप्राइजिंग था. एट हरीज बिग अपसेट. आई वाज सरप्राइज्ड. सरप्राइज्ड पास्ट पार्टिसिपल है. We spent the afternoon in playing cards. पूरा ही क्या है? प्लेइंग कार्ड एक नाउन है, सो इट इज ए जीरंड है. कम एज एन ऑब्जेक्ट. द माइजर हेटेड स्पेंडिंग मनी. मनी क्या है? नाउन. नाउन से पहले क्या है? स्पेंडिंग. एडजेक्टिव और वर्ब, सो पार्टिसिपल. फॉर प्रेजेंट पार्टिसिपल. He was angry at Saroja trying to heed to her. Trying to, the sentence is wrong here. ठीक है, तो इसको काट दो, मतलब नहीं. सो द क्लास पार्टिसिपल जीरंड इन्फिनेटिव आपके पूरे हो चुके हैं. कुछ एक्सरसाइज है ये, कुछ ये भी कर लेना घर पे. आई कैन नॉट ऑन डूइंग. प्रेजिंग ऑल लाइक इज प्रेजिंग नन. प्रेजिंग ऑल इज लाइक प्रेजिंग नन. सो यू हैव टू डू इट एट होम. ओके. Many of the questions I have already done. You have understood the concept of the participle gerund in infinitive. Is a very important topic. All the three are interconnected with each other. So whenever you do the exercise combined. So whatever the confusion you have, you can comment me in the comment box and comment section. I will surely entertain all those kind of the questions. No problem. You can send me. Okay. You can inbox me. You can be answer after the section of that particular kind of the class, that when I'm teaching the gerund, you can ask me the doubts of the gerund. When I'm teaching the noun, or from anywhere, you can ask any doubt of the English grammar, as well as that what you are going to through the competitions like the MPSC or UPSC CSET or anything else. Okay. So we will meet in the next class with a new topic of the grammar. Till then, stay spirited, stay happy. Let's enjoy. Thank you, class.